بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ وظیفہ بتائیں گے، وہ ان کلمات کے بارے میں بتائیں گے جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا تھا، اور جن کو وہ پڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو بھی دعا مانگتے تھے اللہ تعالی انہیں عطا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے خاص گفتگو کا ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کے ذریعے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکاروں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ نے عرض کیا اے میرے پروردگار، اس کو تو تیرے سبھی بندے پڑھتے ہیں، اور میں تو ایسی چیز چاہتا ہوں جو خاص آپ مجھ کو بتائیں۔ رب تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اس کام کو معمولی نہ سمجھو، ساتوں آسمان اور جو کچھ اس کے علاوہ ان کے آباد کرنے والے ہیں اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے ان سب کے مقابلے میں جھک جائے گا۔ تو اس حوالے سے لا الہ الا اللہ کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ جو بات ہے، جو وظیفہ ہے، جو صبح و شام 7 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ بھی آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ یہ وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات جان لیجئے کہ آپ صبح و شام اس وظیفے کو کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اور روزے کی بھی پابندی کیجئے۔ نماز اور روزے سے مراد یہ ہے کہ نفلی روزے اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے مہینے میں تو آپ نے روزے رکھنا ہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ آیت مبارکہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کا دوبارہ سے ورد کر دیتا ہوں، دوبارہ آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تسقینی وانت تمیتنی وانت تحیینی۔ یہ آیت مبارکہ آپ کی سکرین پر بھی نمودار ہو رہی ہے، آپ اس کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اور آپ کو معلوم ہو سکتا ہے کہ اس کی ادائیگی کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کی بدولت آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ طریقہ کار نہایت آسان ہے، آپ نے 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام کو اس آیت مبارکہ کا ورد کرنا ہے، صبح و شام، اور اس سے پہلے آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کا ورد کریں گے اور اس کے بعد 7 مرتبہ صبح یہ آیت پڑھیں گے اور 7 مرتبہ شام کو یہ آیت پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کو اس کے بعد مانگنا ہے، اور دعا اس انداز سے مانگنی ہے، اس انداز سے گڑ گڑا کر مانگنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کی تمام تر دعاؤں کو اور تمام تر حاجات کو اس دعا کے بدلے میں فوری طور پر قبول فرما لیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک واقعہ اور یہ وظیفہ گنا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب اور ان کی اولاد جو سیدنا یوسف کے عہد بادشاہی میں مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں پہنچ چکے تھے اور محکومانہ اور مقہورانہ زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا یوسف اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو درمیانی عرصہ تقریباً 400 سال ہے،
सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का मिशन ये था कि उन्हें फिरौन की गुलामी से आजाद कराकर वापस अपने वतन फलस्तीन में ले जाएं और इस इलाके में वो हाकिमाना हैसियत से आबाद हो। सूरतुल किसस की आयत नंबर 28 और सूरतुल किसस जो कि 28 नंबर सूरा है और उसकी आयत 3 से 13 का तर्जुमा आपको सुनाते हैं। हम आपको मूसा और फिरौन के बिल्कुल सच्चे हालात पढ़कर सुनाते हैं, उन लोगों के फायदे के लिए जो ईमान लाते हैं। फिरौन ने मुल्क में सरकशी इख्तियार कर रखी थी और अपनी रैयत को कई गिरोह बना दिया था और उनमें से एक गिरोह बनी इसराइल को बहुत कमजोर बना रखा था। वो इस गिरोह के लड़कों को तो कत्ल कर देता मगर लड़कियों को जिंदा रहने देता था। बिलाशुबा वो मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने वालों में से था और हम ये चाहते थे कि जिस गिरोह को इस मुल्क में कमजोर बनाया गया है उस पर एहसान करें, उन्हें सरदार बनाएं और इस मुल्क के वारिस बनाएं और इन्हें इस मुल्क में इक्तदार बख्शें और फिरौन और हामान और उनके लश्करों को वही कुछ दिखा दें जिसका उन्हें इन बनी इसराइल से खतरा था। हमने मूसा की वालदा की तरफ इल्हाम किया कि इस बच्चे को दूध पिलाती रहो, फिर जब तुझे उसका खतरा हो तो उसे दरिया में डाल देना और ना कुछ खुद रखना और ना गम खाना। हम इस बच्चे को तेरी तरफ ही लौटा देंगे और इससे अपना रसूल बना देंगे। चुनाचे फिरौन के घर वालों ने इस बच्चे को उठा लिया कि वो उनके लिए दुश्मन और रंज का बायस बने। बिलाशुबा फिरौन, हामान और उनके लश्कर को खताकार लोग गिरदाना गया और फिरौन की बीवी फिरौन से कहने लगी, ये बच्चा तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इसे कत्ल न करो। क्या अजीब कि ये हमारे लिए मुफीद साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना लें। और वो इसके इंजाम से बेखबर थे और मूसा की वालदा का दिल सख्त बेकरार हो गया और अगर हम उसकी ढारस न बंधाते तो करीब था कि वो राज फाश कर देती। ढारस बंधाने का दूसरा फायदा ये था कि वो हमारे मूसा को वापस उसके पास लौटाने के वादा पर यकीन करने वालों में से हो जाए। चुनाचे उसने मूसा की बहन से कहा कि इस बच्चे के पीछे पीछे चलती जाओ। वो आंखें बचाकर देखती रही और दूसरों को इसका पता तक न चल सका और हमने पहले से ही मूसा पर दाइयों का दूध हराम कर दिया था। उस वक्त मूसा की बहन ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसे घराने का पता बतलाऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें और वो उसके खैरखा भी हों। चुनाचे हमने मूसा को उसकी वालदा ही की तरफ लौटा दिया ताकि वो अपनी ठंडक आंख ठंडी करे और गमजदा न रहे और ये जान ले कि अल्लाह का वादा सच्चा है। अक्सर लोग ये बात नहीं जानते। इन तमाम आयात से एक बात और इस पूरे वाकया से एक बात वाज़ेह होती है और सबक आमोज पहलू निकलते हैं। पहला जो सबक है वो ये है कि अल्लाह कादिर मुतलक है। इस वाकये से एक सबक ये मिलता है कि अल्लाह कादिर मुतलक है। फिरौन लाख चाहे कि वो बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करा दे, लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ हजरत मूसा को बचा लिया बल्कि उसके घर में उनकी परवरिश का सामान कर दिया। अल्लाह ताला करीम है। अल्लाह ने न सिर्फ हजरत मूसा को बचाकर महल में परवरिश का इंतजाम कर दिया बल्कि हजरत मूसा की वालदा को सुकून और राहत पहुंचाने के लिए उन्हें भी हजरत मूसा के करीब कर दिया, जो अल्लाह की करम नवाजी का एक पहलू है। यहाँ पर चंद एक सवालात पैदा होते हैं। हजरत मूसा किस तरह फिरौन के दरबार पहुंचे? अल्लाह ने हजरत मूसा की मां को अपने बच्चे से किस तरह मिलवाया? हजरत मूसा की हिजरत के बारे में सवाल है। सूरतुल किसस की आयात 14 से 28 है। और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंचे और पूरे तवाना हो गए तो हमने उन्हें कुव्वत फैसला और इल्म अता किया और हम नेक लोगों को ऐसे ही जजा दिया करते हैं। और मूसा शहर में उस वक्त दाखिल हुए जब अहले शहर गफलत में थे। वहां मूसा ने दो आदमियों को आपस में लड़ते हुए देखा। उनमें एक तो मूसा की अपनी कौम से था और दूसरा दुश्मन की कौम से। जो मूसा की अपनी कौम से था उसने मूसा से उसके खिलाफ फरियाद की
जो दुश्मन की कौम से था, मूसा ने उसे मुक्का मारा तो उसका काम ही तमाम कर दिया। मूसा ने कहा, ये तो एक शैतानी हरकत है, बिला शुबा शैतान सरीह बहकाने वाला दुश्मन है। फिर दुआ की भी, परवरदिगार बिला शुबा मैंने अपने आप पर जुल्म किया है, लिहाजा मुझे मुआफ फरमा दे। चुनाचे अल्लाह ने उसे मुआफ कर दिया, बिला शुबा वो बड़ा बख्शने वाला रहम करने वाला है। फिर ये अहद किया कि परवरदिगार तूने जो मुझ पर इनाम किया है तो मैं कभी मुजरिमों का मददगार न बनूंगा। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे डरते डरते और खतरे को बांपते हुए शहर में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि वही शख्स जिसने कल उनसे मदद मांगी थी आज फिर उनसे फरियाद तलब कर रहा है। मूसा ने जवाब दिया, तू तो सरीह गुमराह शख्स है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि दुश्मन कौम के आदमी पर हमला करे तो वो पुकार उठा, मूसा क्या तुम मुझे भी मार डालना चाहते हो जिसे कल तुमने एक आदमी को मार डाला था? तुम तो मुल्क में जब्बार बनकर रहना चाहते हो, इस्लाह नहीं करना चाहते। और एक शख्स शहर के परले किनारे से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, मूसा अहले दरबार तेरे मुतालिक मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, लिहाजा यहाँ से निकल जाओ, मैं यकीनन तुम्हारा खैर खा हूँ। चुनाचे डरते डरते और हर तरफ से खतरे को बांपते हुए निकले और दुआ की, परवरदिगार मुझे इन जालिम लोगों से बचा ले। पर जब उन्होंने मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है मेरा परवरदिगार मुझे ठीक रास्ते में डाल देगा। जब वो मदियन के कुएं पर पहुंचे तो देखा कि बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे और उनसे हटकर एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके हुए खड़ी हैं। मूसा ने उनसे पूछा, तुम्हारा क्या मामला है? वो कहने लगी, हम इस वक्त पानी पिला नहीं सकती जब तक ये चरवाहे पानी पिलाकर वापस न चले जाएं। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा के वाकया से ये बात भी साबित कर दी कि आपको तवक्कुल होना चाहिए, और वो जो वजीफा आपको बताया है बुनियादी तौर पर तवक्कुल ही का वजीफा है। आप तवक्कुल के जरिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कीजिए, अल्लाह आपकी तमाम तर ख्वाहिशात को पूरा फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।